कई लोग घर में क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, छोटा मोटा नकली नकली झगड़ा कर लो, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं करना कि घर टूटने की नौबत आ जाए। ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चे को यदि वैक्सीन लग गया तो मैं तलाक दे दूंगा, ऐसा कर लो। मैं कहा ऐसा मत कर, जिस बच्चे को अच्छी जिंदगी देने के लिए तुम वैक्सीन नहीं लगवा रहे, माता पिता अलग होने के बाद बच्चे की जिंदगी वैसे खराब, ये नहीं करना। तो विवेक से काम करना है। ये बच्ची ऑटिज्म से पीड़ित हुई है। Come on, baby. Come on. You can do it. Come on, baby. Come on now. Come on. Come on, baby. Come on. The vaccination gave her severe brain damage, and she had seizures every day for the rest of her life until she died in my arms at the age of 15. My phone rings, and it's Dr. William Thompson. You and I don't know each other very well. You have a son with autism, and I have great shame now. There's a whistleblower from the CDC who's going to come out and say that the CDC had committed fraud on the MMR study and that they knew that vaccines were actually causing autism. My oldest son, Ian, was walking and running after the vaccine. He was no longer able to do that. So I called the clinic and I said, I think my child's had adverse reaction to those shots. And then came the headbang, the constant banging against anything that he could find. Right now, I'm sitting in a very pretty position in terms of providing you a lot of information. The first thing that Thompson did was to plot a graph. Now, there's no link between early MMR and autism. Those two lines should track together. Now, they do track together until they get to 15 months. Then they separate, and they continue to separate thereafter. And they sliced and diced the data in an effort to get rid of that effect. The relative risk of receiving an autism diagnosis was astronomical. Wow. The CDC had known all along there was this MMR autism risk. In CDC's judgment, the best public policy is to continue vaccination unchanged. You who run our health agencies in this country, you have an obligation to make sure that these studies are complete, thorough, so that we have all the facts. Oh my God, I cannot believe we did what we did. But we did. Omission of crucial data, destruction of documents, misleading the Congress, grievous harm to innocent children. Everything I've been telling my patients for the last 10 years has been based on a lie and a cover-up. Parents should be able to count on federal agencies to tell them the truth. In 1978, the prevalence of autism was about 1 in 15,000 children. If we assume that things are going to continue as they have, we can predict that by 2032, 80% of the boys born will end up on the autism spectrum. Half the children, 80% of the boys. It's a vast number of children who are being diagnosed with autism every day. This is going to be a complete catastrophe if we just let it happen. If the CDC has conducted or facilitated a study comparing vaccinated children with unvaccinated children yet. Have you done that? Vaccines and their components did not increase the risk for autism. The lies from the CDC were still the same. The difference now is we had William Thompson. My time's very limited here. You have studied vaccinated versus unvaccinated. We have not studied vaccinated versus unvaccinated. Oh, that was fine. Stop that. That was the meaning of my question. You wasted 2 minutes of my time. One day everyone will know the truth about vaccines. Hear this well. ये बच्चों के डॉक्टर जब इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पेडियाट्रिशियन जो हैं इनको जो आज डॉक्टर्स जिनके पास आप जाते हो, भले आपका फैमिली डॉक्टर भी क्यों ना, आपके परिवार का डॉक्टर क्यों ना, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि वैक्सीन में बशर्ते उनको जानकारी हो। तो अगर जानकारी नहीं है तो वो इस नॉलेज को सर्वोपरि मानकर वो ये कहेंगे कि नहीं जी कोई दिक्कत नहीं, लगवा लो। डॉक्टर के अग्रवाल करके थे ना जिन्होंने वैक्सीन के लगवाया और जिन्होंने उनकी डेथ हो गई, वो खुद कहते थे कि वैक्सीन मैं लगवा के आया हूँ। वो डॉक्टर होने के बावजूद है 62 के करीब डॉक्टरों की डेथ हुई। ये
इतना महत्वपूर्ण पॉइंट क्यों है कि डॉक्टर्स को जो रिसर्च सीडीसी ने कोई रिसर्च की, अब वो मैनिपुलेटेड रिसर्च थी, ये उनको नहीं पता। वो उनको ये सिर्फ क्या रिसर्च आई कि एमएमआर डज नॉट कॉज वैक्सीन, एमएमआर के टीके से वैक्सीन नहीं होती है, सीडीसी ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी और नियम बना दिया। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, वो क्या सीडीसी को उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि सीडीसी ने किया होगा कुछ अच्छा ही किया होगा। अभी जो विलियम थॉम्सन करके जो वैज्ञानिक है, इसने पोल खोल दी तो सामने आई बात, तो वो कहते हैं कि मैं उस रिसर्च की वजह से सबको बिल्कुल क्या लगाओ बच्चों को, एमएमआर से कोई वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता। लेकिन अब जब मुझे ये डॉक्यूमेंट जब इसको पढ़वाया गया इस टीम की तरफ से जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो इसको शर्म महसूस होने लगी कि हमें जब जानकारी ही गलत दी गई, मैं वही बोलूं सोर्स ही गलत है, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो भी गलत ही होगा। तो इन्होंने अपने सब पेशेंट्स को वैक्सीन खुले तौर पे बोलना कि गलत है शुरू किया। तो ये कारण है कि आपके जो डॉक्टर्स हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ये षड्यंत्र में सारे डॉक्टर शामिल थे क्या? नहीं, डॉक्टर शामिल नहीं थे। उनको तो जो ऊपर से निर्देश आया वो फॉलो कर रहे। तो सबको नहीं पता, कुछ पैसे के कारण पैसा मिल रहा है इसलिए नहीं बोले, कोई डर के कारण नहीं बोले, बहुत सारे डॉक्टर्स बोले। आपके यहाँ पर पंजाब में एक है अमर सिंह आजाद जी, उनके ऊपर तो केस हुआ था इसके ऊपर बोलने की वजह से, एक आर्टिकल लिखने की वजह से पोलियो के ऊपर। तो इतना ये सब काम हुआ। बिल गेट्स का एक वीडियो है, वो छोटा सा है। इसमें बिल गेट्स किसी यूनिवर्सिटी में किसी और विषय पे लेक्चर देना पहुंचा है। I'm Melissa Melton reporting for the InfoWars Nightly News. Multiple overseas media outlets have reported on the fact ये जो जर्नलिस्ट है, ये भी हमारी तरह एंटी वैक्सीन के लिए काम करती है और इसने उस यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं थी, कैमरास भी अलाउड नहीं थे कि कोई सीक्रेटली फिल्म करे इसको। तो ये वहां पहुंची और सीसीटीवी रूम जो था उसमें अपने एक बंदे को बिठा दिया कैमरे की, मैं जब वहां सवाल पूछूंगी तो तुम रिकॉर्ड कर लेना कि प्रूफ रहे, क्योंकि इनका कैमरा अलाउड नहीं था। कार्यक्रम वालों का जैसे यहाँ पर एक कैमरा लगा है तो जर्नलिस्ट का कोई कैमरा अलाउड नहीं। तो ये वहां पहुंची, इसने बिल गेट्स से एक ऐसा सवाल पूछा कि जिसके बारे में कि भारत में आपकी पोलियो वैक्सीन की वजह से 47,000 बच्चों को पैरालिसिस का शिकार हो गए, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो बिल गेट्स को ये उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल यूनिवर्सिटी के किसी लेक्चर में मुझसे कोई पूछ लेगा। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा कि क्या जो बिल गेट्स है बिना डिग्री का दुनिया का सबसे बड़ा polio vaccines linked to the Bill and Melinda Gates Foundation and his Gavi Alliance. Multiple overseas media outlets have reported on the fact that polio vaccines linked to the Bill and Melinda Gates Foundation and his Gavi Alliance have on record caused nearly 48,000 children in India to suffer neurological damage and become permanently paralyzed. Most recently, over 50 African children from Chad also began convulsing after receiving a Gates Foundation-funded meningitis vaccine that specifically targets African people. Those children, some as young as 7, have also subsequently become paralyzed. Yesterday, Bill Gates appeared at a highly controlled speaking engagement to address computer science majors at his new Bill and Melinda Gates Computer Science Complex building on the University of Texas campus. I was able to purchase a ticket from a student and attend the meeting. Though no cameras or recording equipment were allowed inside the meeting, fellow reporter David Ortiz was able to capture a live stream being fed to an adjacent room. When the floor got open for questions, I decided to ask Mr. Gates a real one. Melissa Melton with InfoWars. What do you say to critics who claim your global vaccination program is nothing more than a eugenics program? A huge... Eugenics. Over 48,000 children in India have been paralyzed due to polio vaccines linked to your foundation. No. I mean, nothing has saved more lives than vaccination. The key figure that we think about in terms of what we're prioritizing is the tragic death of young people. But if you go back to about the time I was born, more than 20 million kids under 5 were dying every year. Smallpox, measles, a variety of things. By 1990, even though the number of children in the world, because the population growth had gone up,
that number had come down from over 20 million to about 12 million. And because of the work that the foundation has been at the center of, we now got that down from 12 million to less than 7 million. And the goal is to get it down to well under 3 million, by which time the disparity between what happens with poor children and what happens with rich children will have largely been eliminated. So, you know, vaccines are about saving lives, improving lives. There's no better tool that mankind's ever invented for absolutely those things. And, you know, polio, the whole idea is to reduce and to zero the number of kids who are being paralyzed. And it's during between now and 2018, if things go well, we expect that'll become the second disease ever eradicated. Smallpox back in the 1970s, by 1979, that was certified as the very first and so far the only disease that has been eradicated. So we're pretty close on polio, but what it's about is every year having less and less kids who either die or are paralyzed. Last year it was 232. अब ये बोलता है कि वैक्सीन से ज्यादा किसी ने दुनिया में जान नहीं बचाई है। अब ये दुनिया का बिना डिग्री का सबसे शक्तिशाली डॉक्टर है, मानते हैं आप इस बात को? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, इसको क्या पता वैक्सीन अच्छा है बुरा है, इसको पहले से पता चल जाता है कि आज ये पैंडेमिक आने वाला है, और ये कहता है कि जब तक पूरी दुनिया को वैक्सीन नहीं लग जाएगा तब तक दुनिया नॉर्मल नहीं होगी। ये वीडियो में बोलता है। किसने अधिकार दिया? क्योंकि इसके पास पैसा है, और इसके ऊपर बकायदा नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है इसके जीवन के बारे में कि कितना महान है बिल गेट्स। हम 2013 से इस विषय पे बात कर रहे हैं, 2013 से, जब हमको सब कहते थे कि अरे आप मत बोला दो पोलियो के बारे में। राजीव भाई को सुनने के बाद जब हमने काम करना शुरू किया तो वो सब कहते हैं आप मत बोला दो, सरकार आपके साथ ये कर देगी। हम तो चाहते हैं सरकार करे, क्योंकि जब वो करेगी क्या करेगी? कोर्ट में पेश करेगी, गिरफ्तार करेगी, FIR करेगी, कुछ तो करेगी। उसके बाद जब हम दलील देना शुरू करेंगे तो इनके धज्जे उड़ जाएंगे, क्योंकि झूठे हैं ये लोग, इनको अच्छे से पता है, इसलिए हमको छेड़ते नहीं लोग, क्योंकि उनको पता है सच कहाँ है। ये किसी और तरीके से फंसा दे, कल को आपको मेरे बारे में पता चलेगी, मुझ पे किसी महिला ने आरोप लगा दिया, या कर सकते हैं। इस केस में नहीं जीत सकते हम भाई, यही तो कर सकते हैं। देखिए हमने वही कहा, धर्म के पक्ष में है या अधर्म के पक्ष में। अगर आपने खड़े होकर तमाशा भी देखा, आपका वोट दिया हुआ व्यक्ति यदि कोई गलत काम करता है तो उसका पाप वोट देने वाले को भी भुगतना पड़ता है। ठीक वैसे ही यदि मुझे पता चल गया, ईश्वर ने जिस कारण से भी मुझे ही जानकारी उपलब्ध करवाई, मैं उसको सोचकर कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं बैठ जाऊं, तो मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा जो है कायर इस दुनिया में कोई नहीं, और मेरी नेचर अलाउ नहीं करती। और मुझे लगता है कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी को, उनके ऊपर फिल्में बनी है, मैं सब देखता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को दिखाऊं। मैं गलत को देखकर अगर चुप बैठ गया तो फिर काहे का सिंह। यही नेचर जो है, मुझे लगता है पंजाब के लोग ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आप अपनी क्षमता अनुसार इस बात से लड़ना पड़ेगा। मैं इस तरह से लड़ रहा हूँ, आप किसी और तरीके से लड़िए, लेकिन लड़ना है, आवाज उठाना, तो धर्म के पक्ष में रहना है। तो ये बिल गेट्स का मैं वीडियोस में दिखाना चाहता था कि इस व्यक्ति ने पल्स पोलियो अभियान, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो शुरू की इन्होंने, चैरिटी फाउंडेशन शुरू की, अरबों डॉलर आता है उसके पास चैरिटी ग्रुप। और जब से इसने संस्था शुरू की है, इसकी जो मार्केट वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इसने कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, बिल गेट्स ने, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने। तो जब वैक्सीन लगते हैं तो बच्चे बीमार पड़ते हैं, जो मैंने अभी बताया इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे बच्चों को डायबिटीज, जो आज आपके जो बच्चे हैं जो उनको वैक्सीन दी जा रही है, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। देखा आपने? पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं देश भर से कि भाई साहब सब कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगाया तो क्या मतलब कुछ हो गया, तो ऐसे होता है, यही सवाल होता है। घर वाले बोलते हैं कुछ हो, या तो पत्नी कॉल करती है या पति कॉल करता है, तो पति वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता, पत्नी घोर विरोधी है, नहीं लगवाना पड़ेगा, या पत्नी नहीं लगवाना चाहती तो पति पीछे, या ससुराल वाले, सास ससुर या लड़की के मायके वाले सब जो हम पीछे पड़े हैं कि नहीं बच्चों को लगना चाहिए। तो मैं उनको एक चीज समझा
आप लोग ये ध्यान रखो कि जो मना कर रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, उनके मन में भी आपके बच्चे की भलाई है, आपके मन में भी आपके बच्चे की भलाई दोनों चाहते हैं, बस तरीका अलग है। तो उसकी उस बात का सम्मान करते हुए उनको समझाओ कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन का नुकसान क्या है, उसके लिए हम जानकारी, तो उन सबको समझाते हैं, तो वो समझते भी हैं, नहीं समझते तो मैंने कहा कि बच्चे का, लेकिन वैक्सीन लगवाने से पहले जो पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं, हम सबको यही बोलते हैं कि आप लोग अपने घर में शांति को भंग मत करना है। कई लोग घर में क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, छोटा मोटा नकली झगड़ा कर लो, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं करना कि घर टूटने की नौबत आए। ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चे को यदि वैक्सीन लग गया तो मैं तलाक दे दूंगा, ऐसा मत लो, ऐसा मत कर। जिस बच्चे को अच्छी जिंदगी देने के लिए तो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, माता पिता अलग होने के बाद बच्चे की जिंदगी वैसे खराब, ये नहीं करना, तो विवेक से काम करना है। तो ये जब हम हरिद्वार में जब वैक्सीन स्कूल्स में जब सबसे यहाँ भी हुआ ना, स्कूल में एंट्री नहीं होगी, एग्जाम नहीं देने देंगे, सबके साथ हुई होगी दिक्कत, तो हमने क्या किया, यूनिवर्सिटी को कॉल करना शुरू किया। आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, मैंने उनको भी कॉल किया, मुझे नंबर मिला कहीं से, किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मुझे एंट्री नहीं दे रहे हैं। मैंने फोन करके बोला कि आपको किसने अधिकार दिया बच्चे को एंट्री नहीं देने के? आप कह दिया जस्ट फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स, हम तो गवर्नमेंट ऑर्डर फॉलो करें, हमें बच्चों की जान से, मैं इनडायरेक्टली यही कहना चाहता हूँ, मरे जी हमें तो गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो। You will share the details. We will also revert back. We will go as per the UGCs and Government of India or Punjab government. We are very clear with this. सर वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब सरकार ने इसको मैंडेटरी नहीं किया है तो पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, मैं वही कह रहे हैं ना, देखिए अगर हमें कोई डायरेक्शंस आई हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। अगर आपके अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ आएगा, वी विल सीक द ओपिनियन। बट सर लेकिन मैं वही, आपके पास ऑर्डर्स आए हैं, बट बीइंग अ रजिस्ट्रार ऑफ अ यूनिवर्सिटी, वी विल गो विद व्हाटएवर द, आई रिपीट, व्हाटएवर इज द यूजीसी गाइडलाइंस, व्हाटएवर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट गाइडलाइंस। No, even if that is compromising the health of the students. How in that way it is compromising? Because vaccination, if you don't know, vaccination actually is not, it has not been proved scientifically that it is benefiting people. Again, this is a different topic, we can't comment on. No, but sir, you have to look into it because the people's lives depend on it. तो मैंने कहा आपके यहाँ बच्चों को कोई भी स्कूल में यदि आप भेज रहे हो बच्चों को, तो आपने पढ़ाई के लिए भेजा या कुछ शरीर में डलवाने के लिए भेजा? ये साफ साफ बोल दीजिए कि हमने आपके पास शिक्षा के लिए भेजा था। आपको बच्चे के, हमारे बच्चे के शरीर में क्या डलेगा उसमें मेरी मर्जी चलेगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो जब हरिद्वार में ऐसा होना शुरू हुआ तो डीएम के ऑर्डर में सब चलता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आपके यहाँ डीएम ही बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ना, तो हमारा डीएम बोलता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो उससे चला, तो मैं उसके पास उसके कमरे में गया और उसको बोला कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे बन के गया कि आपके वैक्सीनेशन अभियान के बारे में वीडियो बनाना। तो वो सोच रहा था कि शायद मेरी उपलब्धि को बताने के लिए आया है कि मैंने कितना अच्छा वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन एश्योर करने के लिए किया। अब उसको नहीं पता था मैं क्या पूछने वाला, तो जैसे मैंने उसको पूछा तो वो पहले सकपकाया, कैमरे सामने बोलूं नहीं बोलूं, फिर एंड में बोल दिया। इस वीडियो को सर्कुलेट करके पूरे हरिद्वार में जिन्होंने वैक्सीन नहीं देने का निर्णय लिया था, मैं उनको कहता कि इस तुम्हारे डीएम का वीडियो दिखा दो, क्योंकि इस वीडियो में वो क्या बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगाना जरूरी नहीं है, हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। देश का शायद पहला कोई डीएम था इसका वीडियो पब्लिकली सामने आ गया। को भी प्रेस नहीं किया गया, अगर प्रेस किया जाता तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऑर्डर पास किया जाता। ये बिल्कुल वॉलंटरी था, किसी को फोर्स नहीं किया गया था। कहा गया था अगर कोई नहीं लगवाना चाहता है तो उसके लिए वो अपने पेरेंट की एक लिखित में परमिशन लेकर आ जाए कि पेरेंट्स को लिख कर देने की भी जरूरत नहीं है कि वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना चाहते, एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर डायरेक्शन था कि स्कूलों में आप छात्रों को इन्फॉर्म करिए 15 to 17 ईयर्स के बच्चों को कि उनका वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। उनसे कहा गया था कि अपने साथ वो आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण
ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे। 2, तीसरा कहा गया था कि अगर ये बिल्कुल वॉलंटरी था, किसी को फोर्स नहीं किया गया था, कहा गया था अगर कोई नहीं लगवाना चाहता है तो उसके लिए वो अपने पेरेंट की एक लिखित में परमिशन लेकर आ जाए कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराते। हमारे पास ये डेटा है, कई स्कूलों में पेरेंट्स की तरफ से ही आया है हमको नहीं लगवाना है, हमको नहीं। बट सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, पेरेंट्स को लिख कर देने की भी जरूरत नहीं है कि वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना चाहते, एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो सर मैं बीइंग ए डीएम हर जगह पूरे देश में सभी डीएम सर क्या हो रहा है कि वो प्रिंसिपल्स को सबको कॉल करके फॉलोअप, इतना एक्सटेंसिव फॉलोअप लिया जा रहा है कि उनको लग रहा है कि हमें लगवाना ही है सब बच्चों को। किसी को भी प्रेस नहीं किया गया, अगर प्रेस किया जाता तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऑर्डर पास किया जाता। इवन हमारे यहाँ भी कई लोग ऐसे हैं हरिद्वार में, अभी आपको पता होगा कि अभी हमारा 97 पॉइंट कुछ हुआ है फर्स्ट डोज, जो लोग नहीं लगवाना चाहें उनको फोर्स नहीं किया गया, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स थी उन्होंने मना किया, उनको नहीं लगाया गया। दैट इज नॉट द ग्राउंड रियलिटी। एक्चुअली स्कूल्स ये मान रहे हैं कि डीएम सर फॉलो कर रहे हैं तो हमें सबको लगाना है, अदरवाइज डीएम सर के सामने हमारा ये हो जाएगा कि आपका 100% टारगेट क्यों नहीं पूरा हुआ। ये टारगेट दिया क्यों जा रहा है सर अगर वॉलंटरी है? कोई टारगेट नहीं सर। आपके वक्तव्य में अखबार में पढ़ता हूँ तो सर इट्स नॉट टारगेट। इसमें ये हुआ था कि जो उत्तराखंड बोर्ड है उससे केवल डेटा लिया गया था कि 15 से 17 साल के बच्चे जो हमारे यहाँ एजुकेशन पा रहे हैं 11th या 12th में मोस्ट प्रोबेबली उसी एज ग्रुप में आते हैं, उसका डेटा दीजिए। तो उन्होंने 64,000 बोर्ड का दिया था, कुछ सीबीएसई के डेटा आए थे, कुछ मदरसों के डेटा आए थे। उसके हिसाब से स्टेट ने 1,27,000 बच्चों को ईयर मार्क किया था कि हाँ इतने लोग हमारे यहाँ हैं जिन पर हमको वैक्सीनेशन के लिए उनको बताना है कि ये सुविधा आपको उपलब्ध है, आप लगवाना चाहें तो लगवाएं। बच्चों ने बड़े उत्साह से लगवाई, जिनको नहीं लगवाना था उनके पेरेंट्स की तरफ से मना किया गया, किसी को फोर्स नहीं किया गया और हरिद्वार में बहुत ही सक्सेसफुली अभी तक चल रहा है, कोई मिस हैपनिंग नहीं, एवरीथिंग इज ऑलराइट। कंसेंट फॉर्म के साइन के बिना सर किसकी रिस्पांसिबिलिटी है सर? मैं जस्ट वांटेड टू आस्क। अब आप बंद करिए, मैं और इसके आगे कोई बयान नहीं दूंगा। पीएस स्कूल का मैंने इंटरव्यू लिया था और एक स्कूल और है बाल भारती बाल मंदिर जो है, उसमें किसी में सर कोई भी साइन नहीं करवाया जा रहा है। इफ समथिंग हैपेंस टू एनी चाइल्ड, कोई भी बच्चे को कोई साइड इफेक्ट होता है, हु विल बी रिस्पांसिबल सर? Because six children have died because of this vaccination. This vaccination, how can you say? India, sir, I have the proof. Please give me the proof. टीका से मौत हो गया मेरे बच्चे का। टीका लगवाने से मौत? कोई प्रॉब्लम नहीं था सर जी। डॉक्टर लोग क्या बोले हैं सर? डॉक्टर कुछ नहीं बोले सर। सर आप अब ये मैं अभी कैमरा ऑन नहीं किया था, अभी सिर्फ इसको लग रहा था कैमरा ऑन नहीं है तो कुछ मर्जी बोल लूंगा। मैं ऑडियो फोन में ऑडियो रिकॉर्ड करके और छोड़ा हुआ था कि अगर जो ऑफ कैमरा बोलना चाहता है वो भी रिकॉर्ड करूंगा, जो ऑन कैमरा बोलेगा उसको रिकॉर्ड करूंगा और पूरा फिर हमने डाला था इसको। तो आपको जो ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स अपनी क्षमता अनुसार, मैं ये नहीं कहती हर कोई डीएम के कमरे में घुस जाए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो सरकारी तंत्र है ये तंत्र की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, ये केवल आदेश मानने के लिए जो अंग्रेजों ने भारत का शोषण करने के लिए बनाया। ये उम्मीद मत करिएगा कि ये सरकारी तंत्र आपके भले के लिए काम करेगा, क्योंकि इसमें एक हमने एनिमेशन भी बनाया था जिसमें ये कहा था कि लोग कहते हैं कि सरकार जैसे किसी एक व्यक्ति के नाम से सरकार चल रही ना, इस जैसे मोदी हुआ, इंदिरा हुआ, कोई भी हुआ,
नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार, मोदी सरकार, ये जो नाम से सरकारें चलती है ना, उसमें फिर सरकार, प्रधानमंत्री सरकार का अंग है, वो सरकार नहीं है। तो वो वही व्यवस्था चला रहा है जो अंग्रेज चला रहे थे, तो वो आपके भले के लिए नहीं है। तो हमने ये कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री से 10 साल बाद ये क्वेश्चन पूछे कि आपके वैक्सीन के आदेश के कारण लोगों की बहुत मृत्यु हो गई, मान लीजिए कोई यंगस्टर पूछे, तो वो क्या कहेंगे कि भाई मैं अगर गलत कर रहा था तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आज जो लोग कहते हैं कि जो वो कर रहे होंगे वो सही कर रहे होंगे, मैं ही कहता हूं कि सबसे बड़े शुभचिंतक तो हम हैं उनके, कि गलत करने से रोकते हैं उनको। कि आपने कहा कि आज ये आदेश पारित हो गया, तो आपने कहा कि आप कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे आपने, तो वो बाद में कहेंगे अगर जी मैं गलत कर रहा, आवाज तो उठाते तुम लोग, तुमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार था, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। अब बात समझे मेरी बात? तो प्रोटेस्ट करना है, सरकारी तंत्र के आगे घुटने नहीं टेकने। दिल्ली वाला, हाँ दिल्ली वाला किसको बताइए, बात पता है आपको? रजिस्ट्रेशन है, जो दिल्ली गए होंगे उनको यही स्वागत करता हूँ भरपूर के साथ। ये कूड़े का पहाड़ है ना, ये देखो इसका ड्रोन व्यू कितना सुंदर है, टॉप पे पहुंच सकते हैं आप गाड़ी के साथ। ये मतलब आग लगती है इसमें। अब जो है मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों के लिए ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस नेचुरल लाइफस्टाइल की बात आप जो प्रमोट की, देखिए बीमारियों के इलाज बताना, वो सब मैं भी बता दूंगा, ये भी बताएंगे, वो सब आपको मुझे तो मुझसे ज़्यादा बेहतर बता देंगे। मैं जो चाहता हूँ मूल में ये जो बड़ा मांगे कि जो मैंने पहाड़ दिखाया, ये क्या है, ये हम आने वाली पीढ़ियों को यही लेके जाने वाले हैं। आपका जो शरीर है आपके पूर्वजों की देन है। अभी जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को श्राद्ध से प्रॉब्लम होती है, श्राद्ध क्यों मनाए, जो मर गए उन्होंने क्या देना है हमें, क्या नहीं, कहते हैं बहुत लोग ऐसे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक फिल्म है उसको देखिएगा आप लोग, अपने बच्चों के साथ देखिएगा, एनिमेटेड फिल्म है, पिक्सार एनिमेशन की है, जिसका नाम है कोको, COCO, कोको। वो मैक्सिकन डेड ऑफ द डे के ऊपर बनी है। मैक्सिकन एक डेड ऑफ द डे जो अपने पूर्वजों को याद करने का एक दिन होता है, उसके ऊपर बनी है, जिसमें उनके अनुसार दूसरी दुनिया से इनके पूर्वज की आत्मा जो है उस दिन उस मैक्सिको उनकी कब्र पे आती है और वहां पर उनकी पसंद की चीजें वो रखते हैं उनके सम्मान में। या अगर किसी को वाइन पसंद है तो वाइन का बोतल वहां रखी जाती है, तो वो अपने पूर्वजों को याद करने का तरीका है। ठीक वैसे वो तो एक दिन के लिए कर रहे हैं, बाहर में 15 दिन के लिए कर रहे हैं। अपने पूर्वजों को जिनकी वजह से ये शरीर हमें मिला, उनको याद करने में क्या जा रहा है, उस बहस में पढ़ना ही क्योंकि ये कुत्ते को दे रहे हैं तो किसके पास जा रही है नहीं जा रही, वो छोड़ो ना। मैं 15 दिन पर पूर्वजों को याद कर, क्या बुराई है उसमें, लेकिन वो पूर्वज याद करने योग्य भी तो होने चाहिए। जो पूर्वज ऐसे हिल स्टेशन लेके जाएंगे उन पूर्वजों को कौन याद करेगा? करेगा? वो तो अच्छा है, नहीं चलेगा, क्यों? मैं ये क्यों बोला? अगर हमने पिछले 50 साल की अपनी दिनचर्या, अब जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर जैसे कांच का ग्लास में पानी, मैं देखता हूँ शादियाँ होती है ना, शादी में क्या होता है, पानी छोटी छोटी बॉटल्स होती है प्लास्टिक की, वो प्लास्टिक की बॉटल्स कहाँ जाती हैं? आपको एक सिर्फ मार के घूट मार के फेंक देते हैं कचरे में। 80% रिसाइकिल नहीं होती। आपको लगता है कि रिसाइकिल हो जाती होंगी, नहीं होती, वो यहाँ जाती। ये तो 50 साल में तो ऐसे पहाड़ बन गए, तो अगर ये 2000 साल पहले बनने शुरू होते हैं पहाड़, मान लो 2000 साल पहले के हमारे पूर्वज अगर ऐसे लाइफस्टाइल अपना लेते जो हमने अब अपनाया हुआ है, जो नेचुरल लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं उसमें नहीं होते, मान लीजिए ये तो अकेले ऐसे हजारों करोड़ों में से कुछ एक लोग दो लोग हैं ना जो ऐसे अपना रहे हैं, तो प्लास्टिक फ्री जीवन या कुछ भी जीवन। तो अगर हम ये 2000 साल पहले करना शुरू, ऐसे कितने पहाड़ होते? अभी दिल्ली में 4 है शायद, कितने पहाड़? 50 साल में 4 हो गए। पंजाब में भी 10-12 होते।
10-12 हो गए। ऐसा पूर्वज नहीं बनना है। आप समझ जो मैं कहना चाहता हूं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जीवन में कम से कम ऐसा लाइफस्टाइल तो अपना लीजिए कि पंच महाभूतों पे कर्जा ना चढ़े। ये उसमें सब आने वाली पीढ़ियों को अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे संस्कार देना, बस ये 2 जिम्मेदारी है, इसके अलावा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर ये दोनों चीजें नहीं दे पाए आप अपने आने वाली पीढ़ी को, तो आपको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं। बच्चे तो पैदा हो जाते, लेकिन उस कला को सीखना ये हम लोग नहीं सीखे। तो क्या होता है, हम लोग घर में वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं, फ्रिज लेकर आते हैं, होम थिएटर लेकर आते, कुछ भी लेकर आते हैं, क्या लिखा होता है, रीड द मैनुअल केयरफुली बिफोर ऑपरेटिंग, है ना। अब हमारा बॉडी है, उसका ऑपरेटिंग मैनुअल ही नहीं पता, उसका ऑपरेटिंग मैनुअल क्या है, आयुर्वेद, यही है ना। तो वो हमें नहीं पता। तो हम क्या हो गया, हम लोग जब लोग प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवन जीते थे, तो वैज्ञानिक जीवन जब प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक जीवन जिया पूरा, लेकिन कभी नहीं कहा कि हम वैज्ञानिक युग में रहते हैं। लेकिन आज पूरी तरह से अवैज्ञानिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन कहते नहीं करते कि हम तो साइंटिफिक युग में जी रहे हैं। और ये चीज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो कचरा हम लोग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, ये जो वीडियो है, हमारे पूर्वजों ने कभी भी ये लाइट, ये बैलगाड़ी पे चलना, ये सब क्यों आप लोगों में बहुत सारे लोगों को होता होगा ना कि अरे वो तो बैलगाड़ी पे चले हमेशा, पुरानी दीपक की रोशनी पड़ना, कुछ उन्नति नहीं करी, भारत के लोग पिछड़े ही थे। आता है नहीं, भैंस लेवल होती है ना, जो भी करा है यूरोपियंस ने इन्वेंट किया, आ गए। क्यों क्यों क्या जरूरत थी लाखों सालों से बैलगाड़ी चल रही, क्या करना, बाय चॉइस नहीं चली। इसलिए कभी भी आपने पूर्वजों को ये मत कहना कि उनको कुछ आता नहीं, वो सब कुछ आता था। बाय चॉइस उनको पता था कि अगर वो बैटरी बना देंगे, जैसे इसमें प्रवीण मोहन करके व्यक्ति है, अगस्त मुनि ने 5000 वर्ष पहले बैटरी बनाने का फॉर्मूला लिखा हुआ था। एग्जैक्टली उस फॉर्मूले से बैटरी बनाकर बल्ब जलाकर दिखाया, एग्जैक्टली अक्षरशः जैसे उस कश्यप संहिता में लिखा है, अगस्त मुनि ने जो लिखा, और जला भी पड़। उन्होंने कहा कि फिर इन्होंने किया क्यों, इसलिए नहीं किया, उनको बता था कि ये बैटरी जो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये लेके आ जाओ, अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बिजली बन रही है वो तो कोयले से बन रही, तो आपने प्रकृति का क्या फायदा किया। और चलो वो भी समझ गए। अब ये जो बैटरी जब खराब हो जाएगी, जो वेस्टेज होगा वो कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा, जमीन में दबाओगे कुछ तो अगर 4000-5000 साल पहले बैटरी बना देते तो सर कचरा कौन झेल रहा होता, शायद 2-3 हजार पहाड़ों के ऊपर बैठे होते, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए कि हमारे पूर्वज जो लाइफस्टाइल, जो मैं क्यों बोलूं, जो मड हाउस में चूल्हे पे रोटी बनाकर जो भी ये कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग झाग वाला साबुन इस्तेमाल नहीं, बिरला ही कभी करना पड़ेगा, झाग वाला साबुन इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि झाग वाला साबुन इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा, वो जो केमिकल है वो नदी में जाएगा। तो लोग हाथ धोने के लिए ठीक है कर दिया, लेकिन जितना कोशिश हो गई झाग वाले साबुन को ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका केमिकल कहाँ जा रहा है, नदी में, और नदी खराब कर। फिर कहते सरकार नदी क्यों नहीं साफ करती, हमने छोड़ा नहीं, हमसे साबुन नहीं छूट। तो ये छोटी सी बात है। तो ये वीडियो भी आपको, तो ये पूरा प्लास्टिक का जो है। अब मैं आपको एक एंड जो है, ये फिल्म है जिसको आपको नोट कर लीजिएगा, बच्चों के साथ देखना। इस फिल्म का नाम है WALL-E, WALL.E। ये पिक्सार एनिमेशन की फिल्म है। तो मैं फिल्म देखता हूँ अपने अध्ययन के लिए, क्योंकि जिस दृष्टि से लोग भी देखते हैं मैं उस दृष्टि से फिल्म देखता हूँ। तो उसमें बहुत 2008 की ये फिल्म है। इसमें जो आज हमारे साथ है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जब आप ये देख लोगे उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या समझ में आया, लेकर जाएंगे। और तब तक हमने रोबोट्स छोड़ दिए हैं धरती पे, जो धरती को साफ करेंगे, रहने लायक बना देंगे, फिर हम स्पेस से वापस आकर अपनी धरती पे रहने बचेंगे।
तो सबने जो पैसे वाले सबने पैसा इकट्ठा कर और स्पेस में खूब सुविधाएं, मतलब उनको चलना तक नहीं है। जैसे इसमें वीडियो में दिख रहा था ना कि वो होवरबोर्ड पे चल रहे थे, कि वो चलना भी नहीं है उसमें। तो ये होता क्या है कि धरती जो है रहने लायक बची नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि रोबोट्स 600 साल हो जाते हैं, धरती साफ ही नहीं होती। हाँ, वो वापिस ही नहीं आ पाते और जो है ये लोग बेचारे वहीं अटके रह जाते हैं। तो इनकी जनरेशन वहीं बीतती है इनकी। तो इनका बॉडी जो बोन मास होता है वो कम हो जाता है। जब स्पेस में आप होते हैं तो आपकी हड्डियां जो है वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं अगर आप एक्सरसाइज ना करें। तो ये इनका ये हाल हो चुका है, अभी चल भी नहीं सकते। ये सब लोगों को जो है मशीनें चलाती हैं। तो अब इतना मैंने आपको स्टोरी जो बता दी है, बाकी आप फिल्म देखिएगा तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। ये जो सीन है इसको देख के समझिएगा किस तरह इशारा कर रहे हैं। 3 मिनट का है, ध्यान से देखिएगा इसको। चलो उधर बॉल ड्राइविंग रेंज चले और स्पेस में कुछ वर्चुअल बॉल उछालें। ना, कल ही तो गए थे वहाँ, मुझे वापस नहीं जाना। अच्छा, तो फिर करना क्या चाहते हो? पता नहीं, कुछ भी। वो स्क्रीच खेल रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं थक चुका हूँ। चुप रहो, नहीं, तुम चुप रहो। सच में वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरा लंच ले आओ। सुनाई नहीं। रोबोट, मेरा कोल्ड ड्रिंक। आपको खुश रखना ही हमारा कर्तव्य है। आपका दिन हमारे लिए खास है। हे वेट अप, ये लो ये कप लो। कृपया अपनी जगह पर रहें। सर्विस बॉट कुछ ही पलों में आपकी सहायता के लिए हाजिर होगा। हेलो, मैनेजर बॉट। कृपया अपनी जगह पर रहें। सर्विस बॉट कुछ ही पलों में आपकी सहायता के लिए हाजिर होगा। क्या हो रहा है? जॉन। इवा नहीं, जॉन। बाय वाले। ए से है एक्सियोम, आपका होम स्वीट होम। बी से है बाय एंड लार्ज, आपका प्यारा दोस्त। खाने का वक्त, आपका कप हाजिर है। सौंदर्य निखारे, आपका जवाब नहीं। वाकई डियर। अटेंशन एक्सिम शॉपर्स, ब्लू ट्राई करें, यही लेटेस्ट फैशन है। ब्लू मेरा फेवरेट रंग। अरे तो मैं कैसे की है ना, यहाँ सब के सब ढूंढ लिए, जब ये ढंग तो ऐसे कोई नहीं आ सच में अच्छे लड़के जाने कहाँ चले गए। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने ये क्या मैं हूँ मैरी। हाँ, ओ, श्योर, जाओ जाओ। छतरी। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। अब ये जब ये महिला उतरती है, अभी आप देखा स्विमिंग पूल यहाँ पे उतरते ही जो सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग बोलती है, कहती कि हमें तो पता ही नहीं था हमारे पास स्विमिंग पूल भी है। आपको क्या लगा इसमें क्या बताना चाह रहे थे? सामने स्क्रीन